Assalamu alaikum students. This is the second part of the topic static electricity and the second part of the video. And in this video, I will cover the more subtopics related to the topic static electricity. Now students, we need to discuss the topic discharging, because in the previous lecture, I told you about the charging process. I also told you that the insulators is being charged by friction method and the conductors is being charged by contact or by induction. And induction is a process in which there is no physical contact between the charging body and the body which you need to charge. So students, now when you charge your body, when you charge an insulator or conductor, now if you want to discharge your insulator or conductor, discharging means you need to neutralize the charges present on the insulator and conductor. So for neutralizing the charges present on insulator and inside the conductor, this process is known as discharging. So students, discharging is a process to neutralize a charged body. क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो बॉडी चार्ज होती है, if the body is an insulator, then there are free electrons or the negative charges present on the surface or remains on the surface of an insulator. So you want to neutralize that charges by removing the excess charges present on the surface of an insulator. So the process of neutralizing a charged insulator is known as discharging an insulator. In the same way, students, if there are many charges present inside the conductor and you want to neutralize those charges, so for neutralizing those charges by removing the excess charge present inside the conductor, this process is known as discharging. So students, first we need to discuss the discharging methods used to neutralize the excess charges present on the surface of an insulator. So there are two methods which we use to neutralize the charges present on the surface of an insulator. The methods are heating and humid conditions. So student, first we discuss about the heating. Student, in the heating method, we provide an intense heat, understand, to the charged body. देखिए होता क्या है कि जो intense heat है, जो कि basically cause होती है by the surrounding air, सही है, cause the surrounding air, the charged object to be ionized. The ions in the surrounding air then neutralize the excess charge in the charged body. होता क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया कि आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, सही है, और आपने उस चार्ज कंडक्टर को आप एक ऐसी जगह पर ले गए जहां पर आपके पास सराउंडिंग में, यानी कह लें कि आपने क्या किया, आप अपने चार्ज कंडक्टर को फ्लेम के करीब ले गए स्टूडेंट्स. सो देखिए होता क्या है कि अराउंड अ फ्लेम एयर इज प्रेजेंट. सो एयर पार्टिकल्स गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम and when they gets energized, the air particles ionized or converted into positive ion by losing their valence electron. यानी एयर पार्टिकल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टूडेंट आइन में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब जब एयर पार्टिकल्स आइन में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज बॉडी है आपकी, उसके सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है, अब वो आयनाइज एयर पार्टिकल्स हैं, यानी उस एयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं जो एयर के एटम्स ने लूज किए, और एयर जो है वो पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो गई, तो वो पॉजिटिव आइन भी मौजूद है. तो होता क्या है स्टूडेंट, अगर आपकी चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या करेगी, जो आयनाइज एयर के पार्टिकल हैं जो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, उनको अट्रैक्ट करेगी, और पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिव पार्टिकल के साथ कंबाइन होंगे एंड द पॉजिटिव पार्टिकल न्यूट्रलाइजेस द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर, प्रेजेंट ऑन इंसुलेटर. इन द सेम वे स्टूडेंट, अगर आपका इंसुलेटर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, सो एयर के पार्टिकल्स ने आयनाइज होते वक्त जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इनटू द सराउंडिंग, दोस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द चार्ज इंसुलेटर एंड न्यूट्रलाइजेस द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इंसुलेटर. इसी तरह स्टूडेंट, अगर मैं ह्यूमिड कंडीशन की बात करूं, तो ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है कि जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है एयर में, वो वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं. आयनाइज होने का मतलब है कि वाटर के पार्टिकल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और खुद पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसका मतलब जो सराउंडिंग में वाटर वेपर्स हैं, दोस आर नॉट द वाटर वेपर्स but they are converted into the charge particles. So it means in the surrounding positive ions and negative ions are present. So होगा क्या स्टूडेंट्स कि आपका जो चार्ज इंसुलेटर है जिसे आप न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, सो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी सराउंडिंग में मौजूद है, वो क्या करेगा, उस चार्ज इंसुलेटर के पास जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा. अगर आपका चार्ज इंसुलेटर नेगेटिवली चार्ज है
तो वो कह लें कि जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है आपके सराउंडिंग में, सही है, यानी कह लें कि आपके जो वाटर वेपर्स हैं जो कि आयनाइज हुए हैं, तो आयनाइजेशन की वजह से सराउंड वाटर वेपर्स जो है आयनाइज जब हो जाएंगे तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद होगा। तो अगर आपका इंसुलेटर नेगेटिवली चार्ज है तो वो उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड द पॉजिटिव चार्ज neutralizes the negative charge present on the surface of an insulator. And in the same way, if an insulator is positively charged, then the insulator attracts the negative charge or the free electrons present in the surrounding. So students, these are the two methods, heating and humid condition, which we use to discharge or to neutralizes the charges present on the charged insulators. Now student, now we talk about conductors. How can we discharge a charged conductor? So student, remember the point that there is only one method to neutralize a charged conductor, and the method is earthing or grounding. What you can do, you just provide a connection of conductor to the earth, and earth is considered as a huge neutral body. So what the earth do, earth just absorb the free electrons or the excess negative charge present inside the conductor, or if the conductor is positively charged, then the earth allows the negative charge to flow from earth to the conductor, and the negative charge when enters into the conductor combines with the positive charge present inside the conductor and neutralizes the positive charge. So students, याद रखिएगा कि earthing and grounding is the only method to discharge a charged conductor. And what is mean by the earthing? The earthing means you just provide connection of a conductor to the earth. आपने कंडक्टर और अर्थ को एक कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, यानी आपने कंडक्टर का एक अर्थ के साथ कनेक्शन डेवलप कर दिया जब आपने अपने कंडक्टर की अर्थिंग या ग्राउंडिंग की. So जब आपने अपने कंडक्टर की अर्थिंग या ग्राउंडिंग की, so what happened student? If the conductor is negatively charged, then the excess negative charge will flow into the earth. Or in other words, we can say that the earth will absorb the excess negative charge. And student, if the conductor is positively charged, then the earth allows the negative charges to flow from earth into the conductor, and the negative charge when enters into the conductor combines with the positive charges present inside the conductor and neutralizes the positive charge, and the overall charge inside the conductor becomes zero, or in other words we can say that the conductor becomes discharged. So student, earthing means to provide a path for excess electrons to flow from negatively charged conductor, or for electrons to flow from earth to the positively charged conductor. And when the excess negative charge flows from conductor into the earth, or the negative charge flows from earth to the conductor to neutralize the positive charge present inside the conductor, these two methods will cause the conductor to lose its charges and the conductor becomes neutralized. Or in other words, we can say that the charges present on the conductor are discharging, or the conductor discharged or become neutral, because the overall charge present inside the conductor becomes zero. So students, how can we do an earthing or grounding? Earthing and grounding can be easily done by touching the charged conductor with our hand, or you just touch the wire on the conductor and place the wire on the earth. So these are the two these are the two process or the two ways through which we can provide earthing or grounding to the charged conductor. So students, the two methods for discharging a charged insulators are heating and humid condition. What happens in the heating? In the heating, the surrounding air present in the surrounding air particles gets energy from the heating source, and the air particle ionizes and convert into anion. It means that in the surrounding an excess of positive and negative charge is present, because when an air particle ionizes, so it loses its valence electron. So it means in the surrounding air, in the surrounding air, excess of positive ions and negative signs are present. And when you put the charge insulator, so the charge insulator will attract either the positive charge or the negative charge present in the surrounding and become neutralizes. Or in other words, the charged insulator discharges its charges. और when we talk about the humid condition, so humid condition में सिर्फ और सिर्फ water vapor जो है वो ionize होंगे after gaining an energy, और
एनर्जी गेन करने के बाद वाटर वेपर्स आयनाइज होंगे एंड दोस आयनाइज वाटर वेपर्स विल हेल्प टू discharge the excess charges present on the charged insulator. And when we talk about conductors, so a charged conductor can only be neutralized by using a method named earthing or grounding. And earthing or grounding means you just provide a path for an electrons to flow into the earth, to flow from conductor into the earth, or you just provide path for electrons to flow from earth into the positively charged conductor in order to neutralize the conductor. And after neutralizing, the overall charge inside the conductor becomes zero. And how can we do an earthing? So earthing can be easily done by touching the conductor with our hands, or you just touch the wire, you just touch the one end of wire at the conductor and place the other end on the ground. Now students, we need to discuss about the hazards of electrostatics, because student, electrostatics is also useful and causes many hazards to our surrounding. So the first hazard which we discuss is lightning. Students, lightning electrostatic charges are built up due to friction between the air molecules present in the cloud, due to friction between the water molecules present in the cloud and the air molecules present in the surrounding. So students, यानी कि होता क्या है कि जो क्लाउड्स हैं, जब क्लाउड्स जो हैं वो इवेपोरेशन के जरिए जब वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो द क्लाउड्स आर हेवीली फिल्ड विद द वाटर वेपर एंड दोस क्लाउड्स आर मूविंग, एंड व्हेन दे आर मूविंग, the water molecules present inside the cloud gets rubbed with the comes in contact with the air molecules. So जब वाटर वेपर जो क्लाउड में मौजूद है, जब वो एयर मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में आते हैं, so when these two molecules comes in contact, so this causes the friction between the two molecules. अब जब दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फ्रिक्शन होती है, so इससे होता क्या है स्टूडेंट कि आपके पास जो कह लें कि जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, सही है, यानी एयर जो है वो आयनाइज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयन में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, याद रखिएगा स्टूडेंट कि जितने ज्यादा कह लें कि बहुत लार्ज अमाउंट में एयर पार्टिकल्स क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, यानी आयनाइज होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं आइंस के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में नेगेटिव आइंस को क्या करते हैं, लूज करते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एयर पार्टिकल्स लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है स्टूडेंट कि आपके पास जो है ना वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कह लें कि जो एयर सराउंडिंग द क्लाउड होती है, एयर सराउंडिंग द क्लाउड, उसमें वहां पर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं और आपके सराउंडिंग में कह लें कि एटमॉस्फेयर में नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होता क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ना, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कंडक्टिंग पाथ फॉर द चार्जेस टू बी डिस्चार्ज टू द नियरेस्ट और द शार्पेस्ट ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। क्योंकि देखें, मोस्टली हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जो बिजली गिरती है, द लाइटनिंग फॉल्स ऑन द शार्प ऑब्जेक्ट, यानी हमेशा जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट पर ही लाइटनिंग क्या करती है, गिरती है, सही है, यानी जो बड़े टॉल्स ऑब्जेक्ट होंगे उनके अंदर लाइटनिंग जो है वो हमेशा लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। सो ऐसा होता क्यों है कि जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर जो है चार्ज इसलिए गिरता है कि वो जो है जल्दी कांटेक्ट में आ जाते हैं विद द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सराउंडिंग, सही है, इन द सराउंडिंग। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो बिल्डअप होता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल इन द क्लाउड एंड द एयर मॉलिक्यूल, सही है। अब जब देखें क्लाउड जो है, क्लाउड में जब वाटर मॉलिक्यूल एयर मॉलिक्यूल के साथ फ्रिक्शन के जरिए जब कह लें कि उनका कांटेक्ट होता है, तो होता क्या है कि एयर मॉलिक्यूल भी आयनाइज होते हैं, सही है, और एयर मॉलिक्यूल आयनाइज होने के बाद अपने अंदर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, तो हमारे सराउंडिंग में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है और हमारा जो क्लाउड है उसमें पॉजिटिव चार्ज की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अब देखें, हम ये जानते हैं कि जो है ना नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड इन द सेम वे पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अब क्लाउड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है ना स्टूडेंट, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो क्लाउड में मौजूद है, और ये जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है सराउंडिंग में, सही है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करते हैं, सही है, नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के जरिए अट्रैक्ट होता हुआ क्या करता है, यानी ये जो सराउंडिंग में नेगेटिव चार्जेस मौजूद है ना, एक्सेस नेगेटिव चार्ज, these negative charges provides a conducting path for the positive charges to be discharged। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सही है, ये इस नेगेटिव चार्ज के जरिए कह लें अट्रैक्ट होते हुए जो भी ग्राउंड पे शार्प ऑब्जेक्ट होता है,
क्योंकि देखें आपके पास जो चार्ज है वो शार्प ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में भी मौजूद होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है पॉजिटिव चार्जेस को, और वो अट्रैक्ट होते हुए जो भी शार्प ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ग्राउंड पर उस पर क्या करते हैं, स्ट्राइक कर जाते हैं, यानी उस पर गिरते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो हमें नजर आता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग नजर आता है, बिजली की शक्ल में नजर आता है हमें। सही है स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से जो है ना लाइटनिंग जो है वो कह लें कि एक तरह का हैजर्ड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह और बहुत बड़े पैमाने पर मौत भी कह लें कि लोगों को, मतलब इट कॉजेज सिवियर डेथ ऑन द लार्ज स्केल। सही है, क्योंकि देखिए ये बिल्डअप हो रहा है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लाउड एंड द एयर मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स देखिए, अगर लाइटनिंग का जो डेंजर है इसे हम रिड्यूस किस तरह करते हैं, तो देखिए होता क्या है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, सो इन दोस एरियाज अ शार्प metal conductor is installed at the top of the building, and that metal conductor and that metal conductor is earthed or grounded। सही है, यानी एक शार्प मेटल कंडक्टर जो है वो हमने बिल्डिंग के टॉप पर लगाया, और उस मेटल कंडक्टर से एक वायर निकाल के उस वायर को ग्राउंड में क्या करते हैं, हम कह लें कि डिग करके ग्राउंड में उस वायर को क्या करते हैं, मतलब कह लो कि उस वायर को फिक्स कर देते हैं ग्राउंड में। अब होता क्या है स्टूडेंट्स के उन इलाकों में क्या होता है कि जब लाइटनिंग बनती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आर बिल्ड अप ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इन द क्लाउड एंड एयर मॉलिक्यूल्स। तो जब लाइटनिंग कह लें कि जब कॉज होती है, तो लाइटनिंग जब फॉल करके आती है और उस शार्प टॉल मेटल कंडक्टर पे फॉल करती है, तो चार्जेस मेटल कंडक्टर से होते हुए, वायर से होते हुए क्या करते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं, यानी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है चार्जेस को, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बिल्डिंग है उसको कोई डैमेज नहीं होता। सो स्टूडेंट ये तरीका है कि हम इस तरीके से लाइटनिंग के हैजर्ड को क्या करते हैं, कम करते हैं। Now we discuss the second hazard of electrostatic, which is the electrostatic discharge in the gas tankers. So students, as we all know that when the trucks are running on the road, so the truck is in contact with the road by the tires, because the tires of the trucks are continuously in contact with the road, and when the truck is moving on a road, so there is a friction between the road and the tires of the truck, and due to the friction between the road and the tires of the truck, electrostatic charges electrostatic charges can accumulate on the truck। यानी होता क्या है स्टूडेंट के जब रोड पर आपके पास ट्रक चल रहा है, so the tires of the trucks is in continuous contact with the road, and there is a friction between the road and the tires of the trucks। so what happens कि जब फ्रिक्शन, जब कह लें कि टायर जब कंटिन्यूसली रोड पे रगड़ खा रहा है और फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है, तो फ्रिक्शन की वजह से होता है क्या है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर जाते हैं, और टायर इंसुलेटर का है तो उसकी सरफेस पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज आता है, और टायर जो है वो मेटल की कह लेंगे मेटल शाफ्ट के साथ जो है वो ट्रक की बॉडी से कनेक्ट होते हैं। सो मेटल कंडक्टर से होते हुए चार्जेस क्या करते हैं, पूरे के पूरी ट्रक की बॉडी पर एकोमोडेट हो जाते हैं। सही है स्टूडेंट। सो होता क्या है कि अगर ट्रक के अंदर कोई फ्लेमेबल मटेरियल होगा तो स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है। सही है, और अगर स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो अगर आपका फ्लेमेबल मटेरियल होगा तो एक्सप्लोजन होगा, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। सो स्टूडेंट्स इस चीज को कह लें कि ये जो कह लें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एकोमुलेट होते हैं ऑन द ट्रक, तो इन एकोमुलेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ट्रक के रेयर एंड पर यानी पीछे की तरफ मेटल चेन्स को कनेक्ट करते हैं, एंड दोस मेटल चेन्स आर कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। यानी वो जो मेटल चेन्स होती हैं वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ रही होती है, जिसके जरिए होता क्या है कि जो ट्रक की बॉडी है उसकी अर्थिंग हो जाती है। सही है, और आपके पास कह लें कि when the charges accumulate due to friction between the road and the tire, so when those charges are on the body of the truck, so what happens student, those charges can travel to the ground by the metal chain placed at the rear end of the truck। यानी आपने ट्रक के रेयर एंड पर जो मेटल चेन लगाई है, उस मेटल चेन के जरिए आपकी ट्रक की बॉडी पर एकोमुलेट होने वाले जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे चार्जेस क्या कर जाते हैं स्टूडेंट्स, मूव कर जाते हैं इनटू द ग्राउंड। सो स्टूडेंट्स होता क्या है कि व्हेन द ट्रक्स आर कंटिन्यूअसली रनिंग ऑन द ग्राउंड, सो there is a friction between the tires of the trucks and the road। so due to the friction electric charges can accumulate on the truck's body।
So students, if we want to discharge those accumulated charges, so what we can do, we just place a metal chain at the rear end of the truck and place the metal chain to the ground. So we in simple or in other words, we just earthing the body of the metal conductor. So what happens, student, when the charges accumulated on the surface of the truck, on the body of the truck, so those charges can travel to the ground or travel to the earth by the metal chain which is in contact with the earth or the ground. So इस तरीके से क्या होगा कि भले आपके पास ट्रक जो है उसके टायर्स और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस जो है वो एक्यूमुलेट हो और वो चार्जेस आपके ट्रक की ओवरऑल बॉडी पर मौजूद हो, लेकिन जब आपने रियर एंड पर ट्रक के मेटल चेन लगाकर उस मेटल चेन को आपने कह लें कि अर्थ पर कह लें कि टच करवा दिया, तो आपने क्या किया, अपने ट्रक की बॉडी की ग्राउंडिंग कर दी, जिसके जरिए होगा क्या कि ट्रक की बॉडी पर जो भी चार्जेस एक्यूमुलेट हुए ना स्टूडेंट, वो एक्यूमुलेटेड चार्जेस क्या करेंगे, थ्रू द मेटल चेन जो है वो मूव कर जाएंगे इनटू द ग्राउंड. सो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपका स्पार्क है, कह लें कि the probability of the sparking will be reduced. सही है. तो इसी तरह जब probability reduce हो गई स्पार्किंग की, तो आपका एक्सप्लोजन जो है उसके चांसेस भी क्या हो गए, कम हो गए. सो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसीलिए मोस्टली आपने देखा होगा कि बाहर के ममालिक में जो ऑयल टैंकर्स वगैरह होते हैं, उन ऑयल टैंकर्स के पीछे जो है वो मेटल की चेन्स लगी होती है जो कि कंटिन्यूसली ग्राउंड पे टच कर रही होती है. सो होता क्या है कि वो मेटल बॉडीज जो है ना ट्रक्स की, उनकी क्या करते थे, अर्थिंग या ग्राउंडिंग करते हैं बाय कनेक्टिंग द मेटल चेन्स एट द रियर एंड ऑफ द ट्रक टू द ग्राउंड. सो होता क्या है कि जब आपके ट्रक्स जो है वो रन कर रहे होते हैं ऑन द रोड, and when the charges accumulate due to the friction between the tires and the road, so those charges are on the overall body of the truck. So students, those charges can be discharged when you connect a metal chain at the rear end of the truck to the ground, because by connecting the metal chain at the rear end of the truck to the ground, you just providing the path, you just providing a path for the negative charges which is on the overall body of the truck to flow into the earth, and the overall charge on the truck's body becomes zero, and this will reduces the chances of explosion and sparking. So students, याद रखिएगा कि जब फ्रिक्शन की वजह से टायर्स और रोड के दरमियान में क्या होगा, फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, तो आप देखेंगे आपकी ट्रक की बॉडी पर जो है वो चार्ज मौजूद है. अब होता क्या है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, कि स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है. और अगर ट्रक के अंदर फ्लेमेबल मटेरियल हुआ, तो वो जो फ्लेमेबल मटेरियल है या वो जो लिक्विड है वो भी चार्ज हुआ होगा. सही है, क्योंकि वो मेटल बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में आ रहा है. तो वो जैसे ही कह लें कि स्पार्क प्रोड्यूस होगा, तो फ्लेमेबल मटेरियल क्या करेगा, उस स्पार्क को कैच कर लेगा और आपके कह लें कि धमाका हो सकता है. सो आपने क्या करना है, जो ट्रक की बॉडी पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ऑफ द ट्रक, so you just need to neutralize that charge. And how can you neutralize the charge? You just connect a metal chain at the rear end of the truck to the ground, and by doing this you are just providing a path for the charges present on the truck's body to flow into the earth, and the truck's body and the charges on the truck body become zero, or in other words we can say that the charge discharges. So students, these are the points which you need to remember. सही है. So याद रखना है आपने कि इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो गैस टैंकर्स या कह लें कि जो आपके पास फ्लेमेबल मटेरियल्स को कैरी कर रहे होते हैं टैंकर्स, उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लें कि आपके पास जो चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, उन्हें आप इस तरीके से डिस्चार्ज करते हैं, ताकि क्या हो कि आपके जो है फ्लेम जो है वो क्या होना, फ्लेम जो है वो फायर को कैच ना करे और आपका एक्सप्लोजन वगैरह के चांसेस जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. So students, the two hazards of electrostatic which we discuss is lightning and the electrostatic discharge in the gas tankers. So the points which I discussed with all of you in these two hazards, you all need to remember these 2 points. You all need to remember those points which I discussed in these 2 subtopics. Now the next topic, student, in the next topic we discuss some applications of the electrostatics. So the first application which we discuss is photocopier. Students, a photocopier, a simple photocopier works on the electrostatic principles of electrostatic. ठीक है, आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इसी को यूज करते हुए हमारा जो कॉपियर होता है वो वर्क करता है. सही है. अब ये वर्क करता किस तरीके से, मैं आपको इस बारे में बताऊं.
देखिए होता क्या है कि ये जो इसकी वर्किंग है कॉपियर की, फोटो कॉपियर की, वो 6 स्टेप्स पर कंसिस्ट है। अच्छा, अब ये 6 स्टेप्स क्या है भाई? सबसे पहला स्टेप है कि आपने क्या किया है कि आपके पास एक ड्रम मौजूद होता है, सही है, एक ड्रम होता है मौजूद, और वो जो ड्रम है उसके ऊपर जो है आपने एक फोटो कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग की हुई होती है। अच्छा, ये पॉइंट्स आपने याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपके पास एक ड्रम होता है, उस ड्रम पर जैसे ये आपके पास प्लेट है, सही है, इस पर क्या होता है, इस पर फोटो कंडक्टिंग मटेरियल जो है उसकी कोटिंग लगी होती है। अच्छा, फोटो कंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं? देखिए फोटो कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं कि जब उनके ऊपर लाइट फॉल होती है तो जितने हिस्से पर लाइट फॉल होगी उस हिस्से पर मौजूद चार्ज जो है क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी फोटो कंडक्टिंग मटेरियल जो है ये वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की टर्म में बात करें तो इसका मतलब ये है कि फोटो कंडक्टिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं कि जब उन पर लाइट फॉल होती है तो उनके जिस हिस्से पर लाइट फॉल हो रही है उस हिस्से पर मौजूद जो भी चार्ज होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, सही है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, आपने जो है जो भी आपकी प्लेट है उसको आपने सबसे पहले क्या किया, या ये ड्रम आप इसको कह सकते हैं, इस ड्रम को आपने फोटो कंडक्टिंग मटेरियल से कोट किया हुआ है, सही है। और इस ड्रम के बराबर में आपके पास मौजूद है हॉट रोलर्स। अब स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो रोलर है ना, ये रोलर कह लें या इसको कह लें कि ये नेगेटिवली चार्ज वायर होता है। इस नेगेटिवली चार्ज वायर, ये जो नेगेटिवली चार्ज वायर होता है ना, ये क्या करता है, ये इस फोटो कंडक्टिंग ड्रम पर मौजूद जो कह लें कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है उस पर पॉजिटिव चार्ज को क्या करवाता है, प्रोड्यूस करवा देता है स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ड्रम है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ड्रम की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, सही है। और ये पॉजिटिव चार्ज किसने प्रोड्यूस करवाया, ये नेगेटिवली चार्ज वायर या ये जो रोलर होता है, नेगेटिवली चार्ज वायर जो होता है जो यहाँ पे प्लेस होता है, सही है। देखिए ये रहा ना आपके पास वायर, जो नेगेटिवली चार्ज वायर है, इस नेगेटिवली चार्ज वायर ने क्या किया, आपके ड्रम की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करवा दिया, प्रोड्यूस करवा दिया, सही है। क्योंकि आपका जो ड्रम है वो कोटेड हुआ है विद अ फोटो कंडक्टिंग मटेरियल। अब क्या हुआ स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, आपके ड्रम पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और नेगेटिवली चार्ज वायर जो कि ड्रम के बराबर में प्लेस था उसने ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करवा दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ यू जस्ट प्लेस एन ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू मेक अ कॉपी, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसकी आप कॉपी बनाना चाहते हैं आपने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करा ड्रम पर। So when you place an object on the drum, so what happens student, a shadow of an object is formed on the drum। आप जैसे ही क्या करते हैं कि आपने क्या किया, आपने फोटोकॉपी मशीन खोल के शीशे पे अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज, उस ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो ड्रम पर बनता है, और ड्रम पर जैसे ही शेडो बनता है, सही है, तो होता क्या है कि आपने देखा है ग्रीन कलर की लाइट आती है, सही है स्टूडेंट। तो अब याद रखिएगा जैसे ही ग्रीन कलर की लाइट आती है तो होता क्या है कि जिस हिस्से पर आपके ऑब्जेक्ट का शेडो बन रहा है ना, ड्रम के जिस हिस्से पर आपके ऑब्जेक्ट का शेडो बन रहा है उस हिस्से पर मौजूद जो है चार्जेस रह जाते हैं, यानी शेडो वाला जो एरिया है उस पर चार्ज रहता है, और बाकी जितना एरिया है जिस पर शेडो नहीं बना, वो जो लाइट फॉल, वो ग्रीन कलर की जो लाइट पास होती है वो क्या करती है, उस तमाम हिस्से के चार्ज को डिस्चार्ज कर देती है जहां पर आपके पास शेडो नहीं बना ऑब्जेक्ट का, और जिस हिस्से पर ड्रम के जिस जगह पर ऑब्जेक्ट का शेडो था उस जगह पर आपके पास चार्ज जो है वो क्या रहता है, मौजूद रहता है, सही है। यानी इट मींस ऑन द डार्क एरियाज द चार्जेस आर प्रेजेंट, द पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट, while on the area, while the areas having no shadow can easily discharges the charge present on that region, सही है। यानी उस रीजन पर मौजूद जो चार्जेस हैं वो लाइट के पास होने की वजह से इजीली डिस्चार्ज हो जाते हैं। और अब चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ मौजूद है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ चार्ज उस जगह पर मौजूद है जहां पे आपके ऑब्जेक्ट का शेडो बन रहा था, यानी ड्रम के उस जगह पर जहां पर आपके ऑब्जेक्ट का ड्रम पर शेडो बन रहा था, तो शेडो वाले रीजन में चार्ज मौजूद है, और बाकी सारे यानी कह लें कि शेडो के अलावा जितना भी हिस्सा है उसका चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो गया। नाउ स्टूडेंट अब होता क्या है, अब होता ये है कि आपके पास जो चार्ज है वो सिर्फ उसी हिस्से में मौजूद है जहां पे आपके ऑब्जेक्ट का शेडो बना है, जैसे कि ये एक्स रीजन शो हो रहा है रेड कलर से, यानी इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस एक्स रीजन पर मौजूद है। अब होता क्या है स्टूडेंट कि आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज टोनर लगा होता है, इस नेगेटिवली चार्ज टोनर के अंदर
आपके पास इंक होती है। अच्छा, फोटोकॉपियर में जो हम इंक यूज करते हैं वो पाउडर इंक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टोनर नेगेटिवली चार्ज है, सो इट मींस द इंक पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द टोनर आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज। सो होता क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो इस टोनर से नेगेटिव चार्जेस जो है यानी नेगेटिवली चार्ज इंक पार्टिकल्स जो है वो टोनर से रिपेल होते हुए बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के आके क्या करते हैं, ये जो आपका शेडो वाला रीजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस पर आके चिपक जाते हैं। अब जब चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज कह लेंगे पॉजिटिवली चार्ज शेडो रीजन पर आकर जब नेगेटिवली चार्ज टोनर पार्टिकल चिपकते हैं, तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि आपका जो शेडो वाला रीजन है इस रीजन पे इंक चिपक गई, यानी नेगेटिवली चार्ज टोनर पार्टिकल जो है वो स्टिक हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन पर, शेडो वाले रीजन पर अब मेरे पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है। क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इंक पार्टिकल्स जो है वो सेटल हो गए ना इस शेडो रीजन पर आकर। अब स्टूडेंट मेरे पास जो शेडो रीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो होता क्या है कि एट द सेम टाइम और एट दैट मोमेंट द फोटोकॉपी मशीन फीड्स अ पेपर। फोटोकॉपी मशीन क्या करती है, जो उसके कह लें कि सेक्शन में पेपर्स रखे हुए हैं उस पेपर को अपने अंदर फीड करवाती है एंड फीड द पेपर एज अ पॉजिटिव चार्ज, यानी पेपर को पॉजिटिवली चार्ज करवा के, यानी पेपर को पॉजिटिव चार्ज बनाकर अपने अंदर इंटर करती है। और वो पेपर जो है वो जैसे ही ड्रम से पास होता है, तो ड्रम के ऊपर कह लें कि जो शेडो रीजन पर नेगेटिवली चार्ज इंक के पार्टिकल्स लगे, वो इंक के पार्टिकल्स स्टिक होकर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, पेपर पर चिपक जाते हैं। सही है। और पेपर पर चिपकने के बाद वो पेपर जो है वो एक गर्म रीजन, यानी कह लें कि एक हॉट प्रेस होती है आयरन, एक हॉट कह लें कि रोलर्स होते हैं, उन हॉट रोलर से वो पास करता है पेपर। और होता क्या है कि वो जो इंक है, इंक के पार्टिकल्स फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर बिल्कुल कह लें कि आपकी जो इंक है वो पक्की हो जाती है और आपका पेपर जो है वो फोटोकॉपी होकर बाहर आ जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द मेथड ऑन विच अ फोटोकॉपियर वर्क्स। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो कह लें कि फोटो कंडक्टिंग मटेरियल कोटेड ड्रम जो है, वो ड्रम जो है उसके साइड में प्लेस होता है नेगेटिवली चार्ज वायर, सो दैट नेगेटिवली चार्ज वायर चार्ज द सरफेस ऑफ द फोटो कंडक्टिंग ड्रम एज पॉजिटिव। सही है, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कर देता है फोटो कंडक्टिंग मटेरियल कोटेड ड्रम की सरफेस को। अब होता क्या है स्टूडेंट कि आपने अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, सो अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन द ड्रम एंड द लाइट पासेस थ्रू द ड्रम, सो द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द रीजन एक्सेप्ट द शेडो रीजन, यानी शेडो रीजन के अलावा जिस रीजन पर चार्ज मौजूद होता है वो सारे के सारे चार्जेस जो है वो लाइट पास होने से डिस्चार्ज हो जाते हैं, और नाउ द चार्ज इज प्रेजेंट ओनली इन द शेडो एरिया। सही है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, देयर इज अ टोनर present near negatively charged toner present inside the photocopier machine, and the ink particles are present inside the toner are also negatively charged. So what happens, like charges repel each other, so the ink particles spreads out from the toner and stick to the positively charged shadow area. Now what happened, now the shadow area becomes negatively charged because the negatively charged toner or ink particles are stick to the shadow area. Now the shadow area is negatively charged, so at that moment a photocopy machine feeds paper as a positive charge, and when the paper passes through the drum, so the negatively charged ink particles just start to stick on the paper, and the paper passes through hot rollers, and the powder ink particles fuses and becomes a cleared ink or a liquid ink. सही है, यानी इंक में कन्वर्ट, लिक्विड इंक में कन्वर्ट होता है, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि आपका जो कलर है, आपकी जो इंक है वो पक्की हो जाती है स्टूडेंट, और आपका कह लेंगे जो फोटोकॉपी ने जो इमेज बनाया वो पेपर बाहर आ जाता है। सही है। सो दिस इज हाउ अ फोटोकॉपियर मशीन वर्क्स, यानी इंक मेल्ट हो जाएगी उस हॉट रोलर से पास होने के बाद, और इंक मेल्ट होने के बाद द इंक पार्टिकल्स बिकम्स कह लें कि लिक्विड एंड मेल्टेड एंड जस्ट परमानेंटली स्टिक ऑन द पेपर। सही है, यानी परमानेंटली जो है वो स्टिक हो जाते हैं इन पार्टिकल्स पेपर पर, क्योंकि मेल्ट होके फ्यूज हो गए ना, तो आपके पास जो इमेज है वो बाहर आ गया, कॉपी हो। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा
कि ये जो आपके पास जब आप अपने ऑब्जेक्ट को देखें ना, फोटोकॉपी मशीन में जो शीशा होता है लगा हुआ, जब आप उस पर अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वो भी वो पेपर जिसको आपने क्या करना है, जिसको आपने फोटोकॉपी करना है, जैसे ही आप उस पेपर को रखते हैं तो कहले कि होता क्या है कि आपका जो शीशे वाला हिस्सा है ना, उसके नीचे प्लेट होती है, यानी वो आपके पास मैंने बताया ना कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो होती है ये, तो आपके पास जैसे ही आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा जिसका आप इमेज बनाना चाहते हैं, तो उसका जो शेडो है वो उस प्लेट पर फॉर्म हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज ड्रम जो है उस पर शेडो फॉर्म हो जाता है, और फिर एक ग्रीन कलर की लाइट आती है, तो ग्रीन कलर की लाइट जैसे ही पास होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ शेडो वाले रीजन को छोड़कर बाकी के दूसरे हिस्से पर जितना भी चार्ज मौजूद है वो सब का सब डिस्चार्ज हो जाता है, और अब चार्ज मौजूद होता है सिर्फ और सिर्फ शेडो एरिया पर। फिर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज शेडो एरिया नेगेटिवली चार्ज टोनर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और टोनर यानी कह ले टोनर से बाहर आने वाले नेगेटिवली चार्ज इन पार्टिकल्स जो हैं वो स्टिक कर जाते हैं ऑन द पॉजिटिवली चार्ज शेडो एरिया। नाउ द शेडो एरिया बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, एंड एट दैट मोमेंट द फोटोकॉपियर मशीन फीड्स पेपर एज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड द पेपर passes through the drum, and the negatively charged ink particles starts to stick on the paper, and the paper passes through the hot rollers, the ink powdered melted and become and stick permanently to the paper, और इस तरह से आपके पास जो है वो इमेज प्रोड्यूस होकर फोटोकॉपी मशीन से बाहर आ जाता है। So students, this is how electrostatics work in case of photocopy. Now the second application which we discuss is of spray painting. Students, we also use electrostatics in spray painting. So in spray painting, there is a spray nozzle, there is a spray gun. This spray gun is negatively charged. It means that inside the spray gun, all the paint particles are also negatively charged. Because student, in spray painting we use powdered ink. देखिए स्प्रे पेंटिंग में हम जो पेंट यूज कर रहे होते हैं, दैट पेंट इज पाउडर्ड पेंट, सही है, वो पाउडर की फॉर्म में पेंट होता है। और याद रखिएगा कि आपके पास जो कंपनी से जो कार मैन्युफैक्चरिंग होती है ना कंपनीज से, सो कंपनीज जो कलर करती है वो कलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही यूज करते हुए करती है कंपनीज। सो होता क्या है, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं दे पेंटेड द कार बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो वो करते क्या है, दे यूज पाउडर्ड इंक, सही है। सो होता क्या है कि जो आपके पास स्प्रे गन है, द स्प्रे गन इज नेगेटिवली चार्ज, इट मींस दैट द powdered paint particles present inside the spray gun are also negatively charged, and the car body which they want to paint, that car body is made as a positive charge, सही है। उस कहले के कार बॉडी को जो है वो पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, सही है। तो कार बॉडी पर मौजूद है पॉजिटिव चार्ज, और स्प्रे गन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, एंड द पाउडर्ड इंक पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द स्प्रे गन आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज। So student, what happens when the spray gun is placed near the car body, and when you just open the mouth of the nozzle, so होता क्या है कि इन अंदर मौजूद जो पाउडर्ड पेंट पार्टिकल्स हैं, that paint particles are negatively charged, so the like charges repel each other। तो एकदम नोजल का माउथ ओपन होने की वजह से बिल्कुल एकदम से आपके पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज पेंट पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकलते हैं, और जैसे ही नेगेटिवली चार्ज पेंट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो वो पार्टिकल्स फौरन स्टिक करना शुरू हो जाते हैं टू द पॉजिटिवली चार्ज कार बॉडी, यानी आपकी जो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसको आप पेंट करना चाह रहे हैं उस पर वो नेगेटिवली चार्ज पेंट पार्टिकल्स आके चिपकना शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, और ये कह लें कि जो स्प्रेड आउट होते हैं ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये बिल्कुल इवनली स्प्रेड आउट होते हैं और स्टिक कर जाते हैं ऑन टू द सरफेस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कार बॉडी और द पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू पेंट, सही है। फिर होता क्या है कि फिर आप क्या करते हैं, अपनी कार बॉडी को जब उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पेंट पार्टिकल्स चिपक गए और वो ऑब्जेक्ट जिस पर नेगेटिवली चार्ज पेंट पार्टिकल चिपक गए, सो यू पास दैट ऑब्जेक्ट और द कार बॉडी थ्रू द ओवन, सो द पेंट पार्टिकल्स बिकम्स मेल्ट एंड जस्ट स्टिक टू द बॉडी परमानेंटली, ताकि परमानेंटली बॉडी पर स्टिक हो जाए, सही है। सो स्प्रे पेंटिंग के फायदे क्या हैं स्टूडेंट? सबसे पहला फायदा ये है कि आपके पास जो पेंट होता है ऑब्जेक्ट पर वो बहुत अच्छा होता है, सही है। यानी आपका कह लें ना, ये एक आम सा कह लें कि ऑब्जर्वेशन भी आप देखते हैं, द कार्स पेंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर्स, एंड व्हेन यू पेंटेड एंड व्हेन यू मेक द and when you paint your car by using a simple or local painter, so there is a vast difference between the paint on the car from the manufacturer and from the local painter। तो बेटा
याद रखें स्टूडेंट्स कि बहुत ज़्यादा फर्क होता है जब आप एक लोकल पेंटर से कार को पेंट करवाते हैं और आप जब कार आपकी बिल्कुल न्यू शोरूम से जब आप निकलवाते हैं, सो द पेंट ऑन दैट कार इज ऑफ हायर क्वालिटी. सो होता क्या है, बिकॉज द कार मैन्युफैक्चरर्स यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू पेंट द कार बॉडीज. देखिए, सो पेंट जो होता है ऑब्जेक्ट पर वो बहुत अच्छा होता है. और दूसरा ये कि पेंट की जो कोटिंग होती है, व्हेन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू पेंट योर ऑब्जेक्ट, so the paint coating is smooth and uniform because the paint spreads out, because the powdered paint particles spread out on the positively charged item or body evenly spread out होते हैं positively charged body पर. और the third advantage is that this process is a cost efficient process, and also this process reduces the wastage of the paint. यानी paint ज़ाया नहीं होता है बच्चों जब हम इस process को use करते हैं. Now students, the third application of electrostatic is electrostatic precipitator. Students, these precipitators are installed at the chimneys of the coal-fired power station, because when the power stations generates electricity by the burning of the coal, so the smoke produces due to burning of the coal, and that smoke contains ash particles and also the dust particles. So when you release that smoke into the atmosphere, so the atmosphere becomes highly polluted and causes serious damage to the animals' health and also human health. So students, we just place precipitators at the chimneys of the coal-fired power station. And how the precipitators work, there is a diagram shown below. The diagram is at the bottom of the precipitator, a negatively charged wires are present, and at the top of the precipitator on the left side and right side, two metal plates are installed, and those metal plates are positively charged, and at the bottom of the precipitator a negatively charged wire gauze is present. So student, what happened, the hot gases which contains the dust and ash particles passes through these negatively charged fine wires. So when the hot gases passes through these negatively charged wires, so the dust and the ash particles present inside the hot gases also becomes negatively charged. And when the gases passes in between passes through the region which is in between these two positively charged metal plates. So what happens, student? The negatively charged dust and ash particles are started to attract to the positively charged metal plates. यानी जैसे ही आपके पास जो हॉट गैस है जिसमें डस्ट और एश पार्टिकल मौजूद है, जब वो नेगेटिवली चार्ज वायर से पास कर रही है हॉट गैस, और नेगेटिव चार्ज वायर से पास होने के बाद आपकी हॉट गैस के अंदर मौजूद जो डस्ट और एश पार्टिकल है वो क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए. और जैसे ही वो नेगेटिवली चार्ज डस्ट और एश पार्टिकल्स जो हैं थ्रू दी हॉट गैसेस पास करते हुए दोनों के दोनों यानी लेफ्ट और राइट पर जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट मौजूद है उसके बीच में आती है जब ये हॉट गैसेस, तो इस हॉट गैसेस में मौजूद जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट और एश पार्टिकल्स होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट क्या करती है, उन डस्ट और एश पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, द हॉट गैसेस नाउ बिकम्स फ्री फ्रॉम द डस्ट एंड एश पार्टिकल्स एंड देन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. यानी अब जो हॉट गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है उन हॉट गैसेस में कोई पॉल्यूटेंट मौजूद नहीं है, यानी यूं कह लें कि डस्ट और एश पार्टिकल्स उसमें मौजूद नहीं है. सो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके एटमॉस्फेयर में कह लें कि पॉल्यूटेंट की अमाउंट कम हो गई. सही है स्टूडेंट. और देखें यहाँ पे जो नीचे ट्रैप्स लगे हुए हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो डस्ट और एश पार्टिकल जो मेटल प्लेट पर स्टिक हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट पर स्टिक हुए हैं, वो क्या करते हैं, इस ट्रैप्स में गिर जाते हैं. सही है. तो आप क्या करते हैं, बाद में इन ट्रैप्स को या इन प्लेट्स, ये ट्रैप्स जो है इसको क्या करते हैं, आप साफ कर देंगे. So this is how we can remove the dust and ash particles present inside the hot gases which emitted out from the chimneys of the coal-fired power stations by installing the precipitator at the top of the chimneys of coal-fired power stations. So students, thank you. This is the end of the session 2 for the chapter electrostatics, and we covered all the subtopics included in this chapter, static electricity or electrostatics. So thank you for attending my lecture or watching my video. Thank you once again. Allah Hafiz.